Assalamu alaikum everyone. My name is Fahad Ahmed and my group partners are Uzma Azad and Moiz Nasir. So basically the purpose of making this video is to cover chapter 2 transformations, and the topics which we are going to cover is basically 2.1 the governance, 2.2 is the economy and finance, 2.3 individual and collective action, and 2.4 science and technology. So we will be going through each topic in detail. Basically this whole case study is about the sustainable development and the transformations. This chapter is focusing on the transformation which is required to achieve those sustainable development in any country or organization or whatever. So basically the goal of sustainable development is to meet the need of today without compromising the needs for tomorrow. This what does it mean? It means that we cannot continue using the current level of resources, as this will not leave enough for future generations. So basically in this chapter we will be focusing on the transformation, and by transformation I mean knowledge based transformation which leads to sustainable development, and using 6 key entry points which are basically introduced in this chapter. And those key points are focusing on the well-being of human, sustainable economy, sustainable food system and nutrition patterns, efficient utilization of energy resources which we have in any country, sustainable urban development की बात की जाएगी, and the global environment commons means environment को किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में फोकस करती है sustainable development. So coming to the main point which we are going to express in our presentation, basically there are 4 levers which have been introduced, and I have already explained to you that the governance, economy and finance, individual and collective action, and science and technology are the major 4 levers which with the help of which we can achieve those 6 agenda or 6 points that have a very vital role to play in when we talk about the sustainable development. Okay, so starting with the governance. What is governance? Let me tell you about the 2 main reasons that led to the emergence of good governance. First, after the Cold War, poor countries faced challenges to make transition to the market economy, and therefore they concentrated their efforts to modernize institutions and decision making process, so that by modernizing their institutions they can achieve a sustainable economy. And second, by the end of 1980s and the increase of economic problems such as raising level of external debt, many developed countries launched what we call structural investment program, by which they recognize that by developing those programs they can have a better economy. So good governance basically refers to a set of qualitative characteristics relating to process of rule making and their institutional foundations. It basically encapsulates values such as enhanced participation हो गई आपकी, transparency हो गई, accountability हो गई, and public access to information. Okay, लेट्स कम टू द मॉडल ऑफ गवर्नेंस. बेसिकली कोई डिफाइंड मॉडल नहीं है गवर्नेंस का, क्योंकि हर कंट्री हमें डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात होती है, तो कोई मॉडल डिफाइंड नहीं है गवर्नेंस का. डिफरेंट मॉडल्स हैं जिनकी बेसिस पर काम करते हुए आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करते हैं. द इफेक्ट ऑफ नाउ कमिंग टू द इफेक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑन डेवलपमेंट. अ गुड गवर्नेंस इज बेसिकली वाइडली, अगर हम गुड गवर्नेंस की बात करें तो वो वाइडली एक्नॉलेज होती है एज अ फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग सस्टेन्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, सोशल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर की बात करते हैं, तो गुड गवर्नेंस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. अब हम गुड गवर्नेंस को किस तरीके से जज करेंगे कि ये बेसिकली गुड है कि नहीं है, फिर उसके लिए बेसिकली हम उसको 3 डायमेंशन में एक्सेस किया जाता है. एक मैकेनिक्स होती है डेट प्रमोटेड द प्रोसेस द गवर्नर यूजेस एंड द आउटकम्स जो अचीव हो रही हैं उस गवर्नेंस के ज़रिए. तो बेसिकली मैकेनिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस में बेसिकली आपकी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, डेमोक्रेटिक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात की जाती है. इसी तरीके से एफिशिएंट एंड इफेक्टिव पब्लिक सर्विसेज की बात की जाती है. आपके इदारे जो हैं वो शफाफ होने चाहिए, उनके अंदर जो काम हो रहा हो वो पब्लिक, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आम
पब्लिक तक एक्सेसिबल होनी चाहिए। और फिर हम जब गवर्नेंस प्रोसेस की बात करते हैं तो गवर्नेंस प्रोसेस जो है वो बेसिकली रेफ़र करता है क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन विच इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट political, social and economical priorities are based on broad consensus in society। सोसाइटी की जो में जो आम पब्लिक है उनकी बेसिस पे उनकी कंसेंसस से वो पार्टिसिपेट कर सकें, वो उन पार्टिसिपेशन और उनके उनके जो गवर्नमेंट के प्रोसेस होंगे बेसिकली वो आवाम के लिए होने चाहिए। एंड द वॉइसेस ऑफ दोज एक्सक्लूडेड पुअर पीपल है, वनरेबल पीपल है, वो उनकी आवाज़ को हुकूमत ने सुनना है, गवर्नमेंट के सुनना है, उनके अकॉर्डिंगली रूल्स निकालने हैं, उनके लिए सब्सिडीज़ करनी है, तो बेसिकली और उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना है। तो दैट बेसिकली अगर वो इस चीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं और तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हाँ वो एक सॉर्ट ऑफ गुड गवर्नेंस है। और सिमिलरली आउटकम्स की हम जब बात करें ऑफ गुड गवर्नेंस कुड भी क्या होगी, ज़ाहिर बात है जब अगर गुड गवर्नेंस होगी तो उसके आउटकम्स क्या होंगे, पीसफुल एंड स्टेबल रेजिलिएंट सोसाइटीज़ होंगी हमारे पास। तरक्की याफ्ता ममालिक की बात की जाती है तो उसकी तरक्की याफ्ता ममालिक में सोसाइटीज़ की बात की जाती है, एजुकेशन होगी, लोग पढ़े लिखे होंगे और सर्विसेज जो हैं वो डिलीवर की जा रही जो गवर्नमेंट है वो सर्विसेज डिलीवर कर रही होंगी, उनकी नीड्स को पूरा कर रहे होंगे, उनकी वॉइसेस को सुन रहे होंगे। दैट बेसिकली ऑल सम अप्स दैट के आउटकम गुड गवर्नेंस की हम किस तरीके से जज करेंगे। Okay, there are few steps to integrate e-governance with sustainable development, जिसमें हमारे पास basically protecting basic rights of citizen है, creation of value added services है for higher living standards of people, for secondly हमारे पास फिर genuine development in society आ जाती है, for सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, जेन्युइन डेवलपमेंट होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। और हमारे पास परस्यूट ऑफ सब्सटेंशियल डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट डिग्निटी है, मैनी सर्विसेज एंड प्रोवाइडिंग वन स्टेप क्रिटिकल सर्विसेज टू सिटीजन। आप अपने जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपने आवाम के लिए, पब्लिक के लिए काम करती है, उनकी बेटरमेंट के लिए काम करती है। तो बेसिकली ये गुड गवर्नेंस के अंदर ही आ जाता है सारा चीज़। ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सस्टेनेबिलिटी। ओके, देयर आर फ्यू इंडिकेटर्स हैं एंड रिक्वायरमेंट हैं जो कि गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, हम उन पे बात कर लेते हैं। जैसे इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव अकाउंटेबिलिटी है स्टेट के इंस्टीट्यूशंस की, ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है और पब्लिक एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की जाती है। अगर आपके इदारे मजबूत होंगे, इदारों के अंदर जो ओहदे होंगे वो मेरिट की बेस पे होंगे और जो भी इंफॉर्मेशन इदारों में है, जो काम करें इदारे, जो कि अगर वो आवाम के सामने आना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। और अगर सोसाइटी के अंदर करप्शन है तो गुड गवर्नेंस बेसिकली आपकी गवर्नमेंट आ जाती है और गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ लगानी है या उन्होंने करप्शन है उसको एलिमिनेट करना है, एरेडिकेट करना है, उन्होंने पॉवर्टी को एरेडिकेट करना है, उन्होंने रूल ऑफ लॉ जो है उसको इम्प्लीमेंट कराना है सोसाइटी में और उन्होंने वायलेंस ख़त्म करना है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें सम अप हो के एक गुड गवर्नेंस के अंदर आ जाती हैं। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट द गवर्नेंस। नाउ कम अप हम फोकस करते हैं इकोनॉमी एंड फाइनेंस पे, विच इज़ द सेकंड टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर। जब हम इकोनॉमी एंड फाइनेंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इकोनॉमी एंड फाइनेंस प्लेज अ बिग रोल इन सब्सटेंशियल डेवलपमेंट। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी माशरे में, किसी भी कंट्री के लिए अगर इकोनॉमी उसकी स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंसेस हैं उसके पास, उसके इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, तो इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग होंगे, ज़ाहिर बात है जो मुल्क हैं वो तरक्की याफ्ता होंगे। और एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताता हूँ कि एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टेटमेंट है, द वर्ल्ड हैज़ एन अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी टू शिफ्ट टू अ बेटर ट्रेजेक्टरी विच इज़ ड्रिवन बाय इनोवेशन, हाई क्वालिटी सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर रिसोर्स प्रोडक्टिविटी एंड विटालिटी एंड पोटेंशियल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो बेसिकली ये सब चीज़ें अगर आपने कवर करनी है तो आपने अपने इदारों को स्ट्रॉन्ग करना है, आपने प्लेटफॉर्म देना है सोसाइटी को ताकि वो नए इन्वेस्टमेंट सेंटर्स बनाने हैं, आपने अपने अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, अपने यंग यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, आपने सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी है अपने जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें मुल्क में आपने अपने मोबिलाइज करने हैं, अलाइन करने हैं फाइनेंसेस को। फाइनेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिकॉज अगर आपके पास पैसा नहीं है मुल्क में आप नहीं तरक्की कर सकते। आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाने हैं इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में क्या किसी भी कंट्री की बात करें, आपने अगर तरक्की याफ्ता मुल्क बनना है तो आपने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लगाने हैं जो कि आपको कोई आउटकम दें और बेसिकली इंश्योर करना है। आपने क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की भी बात करनी है। तो
जब हम रोबस्ट पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो वो बेसिकली इंश्योर कराती है कि राइट सिलेक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, हमारे इंसेंटिव्स द प्रोजेक्ट्स प्राइवेट सेक्टर में इंसेंटिव प्रोवाइड करने हैं आपने टू इन्वेस्ट इन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोट करना है सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑल द वे फ्रॉम प्लानिंग टू प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट। फिर इसके अंदर कुछ पॉलिसीज़ आ जाती हैं कि आपने हुकूमत आपको कुछ प्री ग्रोथ पॉलिसीज़ प्रोवाइड करनी है, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल पॉलिसीज़ होनी चाहिए आपकी कि अगर आपका एक प्रोजेक्ट लग रहा है तो इनिशियली इन्वेस्टमेंट जो होगी वो इनिशियल आप कह लें कि प्रोजेक्ट लगने से पहले जो बेसिकली उनको फैसिलिटेट करना है कि वो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, प्रोजेक्ट लगाएं, और अगर प्रोजेक्ट लग गया तो वो प्रोजेक्ट फिर आपको प्रॉफिट भी दे। ये नहीं कि वो प्रोजेक्ट को आपने मतलब लगा दिया और उसके बाद उस पर आपने गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी इदारे की तरफ से कोई उस पर तवज्जो नहीं दी गई और वो प्रोजेक्ट अल्टीमेटली फेल कैटेगरी में जा रहा हो आपका। इसी तरह गवर्नमेंट का काम है आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए। सिमिलरली लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप अगर आप ना हो तो आप प्रोजेक्ट्स नहीं लगा सकते, और लीडरशिप का काम है कि आपको प्रमोट करना और आपको पंप अप करना और आपके लिए फैसिलिटीज़ करना, आपके लिए वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सिमिलरली आपका आपकी गवर्नमेंट का काम है कि आपको एनर्जी की सप्लाई प्रोवाइड करे और बेसिकली आपके लिए वो हर काम करे जो कि एक नए इन्वेस्टर के लिए, एक नए प्रोजेक्ट के लिए सब्सटेंशियल हो। सिमिलरली रिलीफ प्रोग्राम, गवर्नमेंट का काम है कि वो मुल्क के लिए, जो मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए रिलीफ प्रोग्राम्स भी निकालें। टैक्सेस हैं कॉर्पोरेट लेवल के हो गए, पर्सनल लेवल के हो गए, उनको रिड्यूस करे और आवाम को सब्सिडीज़ दे, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दे, ट्रेड के बेनिफिट्स दे, ताकि एक्सपोर्ट ट्रेड जो एक्सपोर्ट है उसमें टैक्सेस कम करे ताकि लोग एक्सपोर्ट कर सकें। बेसिकली रिलीफ प्रोग्राम्स प्रोवाइड करने होते हैं आपने, और रिलीफ प्रोग्राम आप प्रोवाइड करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आप देंगे लोगों को, तो लोग फिर आगे इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, मुल्क में पैसा भी आएगा, बाहर से कंपनीज़ भी आएंगी आपने मुल्क में। अगर हम एग्जांपल ले लें तो हम पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें तो हमारी इकॉनमी आप देख लें कहाँ स्टैंड करती है कि ये तो अभी इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी थोड़ी बेहतर हो गई है, वरना तो हमारे पास कोई इंडस्ट्री आने को तैयार नहीं थी, हमारे पास बिजली नहीं थी, तो कोई फैसिलिटेट करती नहीं हमारी हुकूमत। तो ये सब चीज़ें आपने इकोनॉमी के अंदर और फाइनेंस के अंदर ये सब चीज़ें देखनी होती है आपने, क्योंकि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप मुल्क नहीं चला सकते, सीधी सी बात है। और फिर अगर आप बात करें, आप अब अपने बजट को देख लें कि बजट में आपका सारा पैसा डिफेंस में चला जाता है। इस एजुकेशनल पे या नए एंटरप्रेन्योर्स की जो नए इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें कहाँ पैसा लगता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कहाँ पैसा लगता है, ग्रोथ में, आवाम के लिए कहाँ पैसा लगता है। तो ये आपने मैनेज करना है। अगर आपने गुड गवर्नेंस बनानी है और सब डेवलपमेंट की तरफ जाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है, तो आपने ये सब चीज़ों को देखना होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड टॉपिक है बेसिकली वो इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शन पे है। तो इंडिविजुअल्स के बारे में अगर हम बात करें तो एम्पावरमेंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड पार्टिसिपेशन जो है वो उसको इंश्योर करना है आपने इंडिविजुअल। अब हम इंडिविजुअल एक्ट की तरफ जा रहे हैं बेसिकली कि आपने एक इंडिविजुअल को किस तरीके से सामने लेके आना है, उसके लिए क्या करना है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। वुमेन एम्पावरमेंट में जब हमारे पास बात की जाती है तो बेसिकली उनके लिए हमने रूल मेकिंग करनी है, पॉलिसीज़ लेके आनी है, लीगल फ्रेमवर्क बनाने हैं ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सके। सिमिलरली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बात की जाती है कि इंडिविजुअल एक्ट भी आता है ना। अगर आप मुल्क की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो हमारा रोल भी आता है एक इंडिविजुअल क्या रोल प्ले करें, हम क्या रोल प्ले करें, कुछ भी रोल प्ले नहीं करें। हम सिर्फ बैठे हुए हुकूमत को निशाना बनाते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को निशाना बनाते हैं। किसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर भी आती है और हमारे लिए ऑब्वियसली हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट हमें नहीं प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट आपको एक बता सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकती है, आपके लिए फैसिलिटी कर सकती है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपने खुद निकालनी होती है, आपने अपने एंटरप्रेन्योर स्किल्स डेवलप करने होते हैं, आपने सोसाइटी के लिए वर्क करना होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ सिंपल कि हम बैठे हुए हुकूमत को करते हैं कि यार ये अभी हम कर रहे हैं, पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है और हम हुकूमत को ब्लेम करें कि यार हुकूमत की पॉलिसीज़ ठीक नहीं है। तो हम इंडिविजुअली एज एन इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, हम बग़ैर मास्क लगाए और सोशल गैदरिंग्स कर रहे हैं और
आवाम मार्केटों में फिर रही है, शॉपिंग कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल एक्ट है। ये अगर हम खुद ही अपनी इकॉनमी को तबाह करने वाली बात है। अभी तक अगर हम पेंडेमिक सिचुएशन अगर हमने एहतियात की होती, वो ईद के ज़माने पे, ईद के दिनों में हम जो है वो बाहर ना निकले होते इस तरीके से, और हम लोगों ने शॉपिंगें ना की होती, एक थोड़ी सी SOPs को फॉलो किया होता, तो आज थोड़ी बेहतर सिचुएशन होती। तो बेसिकली इसके अंदर आपका इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शन भी आ जाता है। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो सिर्फ आप रिलाय गवर्नमेंट पे नहीं कर सकते। गवर्नमेंट आपको पॉलिसीज़ दे सकती है, रूल बना सकती है, रूल मेकिंग स्ट्रॉन्ग कर सकती है, लीगल एक्शंस ले सकती है, लॉ इन्फोर्समेंट है, वो बेसिकली है काम हुकूमत का कि वो उनको रूल मेकिंग में हेल्प करे, लॉ इन्फोर्समेंट चाहिए। और कि जुडिशरी सिस्टम आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर कोई केस जाता है हमारा, हम जुडिशरी सिस्टम देख लें आप कहाँ स्टैंड करता है इस वक्त। तो बेसिकली ये हमारे कंसर्न्स हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हमें खुद भी देखनी है। और लास्ट जो बेसिकली हम बात करेंगे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। ऑब्वियसली एवरीबडी नोज़ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट में। और हम बात करें, अगर हम पाकिस्तान एज अ पाकिस्तान के प्रेफरेंस से बात करें, तो हम एक एग्रीकल्चरल स्टेट है। हमारा जो आधी इकॉनमी है या आधी GDP है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। तो अगर हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ही ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ बेहतर सहूलियात प्रोवाइड कर सकें, तो हम अपनी एक्सपोर्ट को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। इसी के अलावा हमें अपना एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे तो सारे अगर हम देखिए बेसिकली ग्रास रूट लेवल से ना ये चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें जाएँ तो IT में आप सिर्फ इंडिया की एग्जांपल देख लें कि इंडिया IT में कहाँ से कहाँ पहुँच चुका हुआ है और हम अभी कहाँ स्टैंड करते हैं। इस वक्त पेंडेमिक सिचुएशन है, सब कुछ ऑनलाइन है, और ऑनलाइन स्टेट्स में अगर हम ऑनलाइन IT इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इस वक्त सब कुछ IT में मूव हो रहा है, क्लाउड में मूव हो रहा है। ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, और हम बेसिकली हमारी जो ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशन है उसमें ये चीज़ें बताई नहीं जाती, ना हमारी कोई एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जिस तरीके से आप यही देख लें कि इंडिया में अगर आप मिडल ईस्ट की बात करें तो मिडल ईस्ट में अगर हम कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करें तो वहाँ पे हायरिंग की जो बेसिकली प्रेफरेंस है के लिए किसी भी इंडिविजुअल को हायर करने की, तो वो इंडिया और बांग्लादेश की ज़्यादा है हमसे। हम अप्लाई करें, हमारा बंदा इतनी प्रायोरिटाइजेशन नहीं मिलती जितनी इंडिया के मिलते हैं। क्योंकि इंडिया की आप गूगल देख लें, फेसबुक देख लें, उनके गूगल का CEO वो आपका इंडियन है। तो बेसिकली इंडिया ने अपने आप को डेवलप किया। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। हम तो अभी तक चांद के पीछे लड़ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी, फवाद चौधरी और जो वो हमारे मौलाना साहब हैं उनके दरमियान तो सिर्फ यही बहस चलती है कि चांद मैं देखूंगा और टेक्नोलॉजी की बेसिस पर चांद वो देखेगा। तो हम तो अभी ग्रास रूट लेवल पे हमने टेक्नोलॉजी पे कोई काम ही नहीं किया। हाँ, टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए आपको लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि हमारे पास इस वक्त वो भी नहीं है। R&D लेवल डेवलप करना पड़ता है आपको। आप चाइना को देख ले, चाइना जैसे ममालिक ने अपनी R&D कहाँ से कहाँ ले, खैर चाइना से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है। लेकिन अगर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करनी है, अगर आपने बिल्डअप करना है, तो आपको ये अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है, अपने एजुकेशन सिस्टम को करना है। आपके बजट में से आप एजुकेशन सिस्टम को कितना देते हैं, आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा लें। तो बेसिकली दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव कवर्ड इन आवर प्रेजेंटेशन। अगर हम बात कर लें, इसको सम अप कर लें, तो बेसिकली हमने 4 चीज़ों पे बात की है। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की बात की हमने गवर्नेंस में हमने बात की कि इंस्टीट्यूशंस को रोल प्ले करना है और फेयर प्ले होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सिमिलरली हमने इकोनॉमी की बात की, फाइनेंसेस की बात की कि फाइनेंसेस को जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फाइनेंसेस को सही तरीके से डील करें फाइनेंसेस के साथ। पैसा होना बहुत ज़रूरी है मुल्क के लिए। किसी भी मुल्क के लिए पैसा नहीं है आपके पास तो आप तरक्की कर ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। तो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स है, ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाएं जो आपको रिटर्न दें। हम मेट्रो के पीछे पड़े हुए हैं, मेट्रो ने हमें क्या रिटर्न दिया है, बल्कि सब्सिडी उनको मिल रही है हमारी तरफ से। तो वो प्रोजेक्ट्स सब्सिडी पे चल रहे हैं, वो वहाँ से रिटर्न तो आ ही नहीं रहा। तो हमारा फोकस ही बहुत ख़राब है, हम IT पे फोकस नहीं करते। जहाँ से पैसा आना है वो प्रोजेक्ट डेवलप नहीं करते, वो प्रोजेक्ट नहीं लगाते। प्रोजेक्ट लग जाए तो उनको मेंटेन नहीं किया जाता। तो ये चीज़ें हमें मेंटेन करनी है। और सिमिलरली फिर हमने इंडिविजुअल एक्ट की बात की। इंडिविजुअल एक्ट में आप खुद अपनी ज़िम्मेदारी लें और
खुद आपने इस मुल्क के लिए करना है, एजुकेशन हासिल करें, आगे से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, एंटरप्रेन्योरशिप निकालें। हमारे हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, बहुत हम हमारे अंदर अगर हम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं इंडिविजुअल एक्ट, लेकिन हमारे अंदर वो है ही नहीं। हम सिर्फ रिलाई करते हैं गवर्नमेंट पे, हमारे अंदर वो जज्बा ही नहीं रहा कि हम खुद से कुछ कर सकें, और हम सिर्फ ब्लेम गेम कर सकते हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हमने बात की कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आजकल के ज़माने में कितना ज़रूरी है। अगर आपके मुल्क में टेक्नोलॉजी है, साइंस है, आप R&D पे काम कर रहे हैं, और आपके इंडस्ट्री अगर आपकी होगी और आप खुद डेवलप, हम तो आधी से ज़्यादा चीज़ें चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट आपने मतलब कहाँ से कहाँ जा रही है। अगर आपकी यही टेक्नोलॉजी, गाड़ियों की बात कर लें, सारी गाड़ियाँ आप जापान से इंपोर्ट करते हैं। अगर यही आपकी अपनी टेक्नोलॉजी हो और आप यहीं पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो गाड़ियों की प्राइसेस क्या होंगी, और हमारे मुल्क में काफ़ी चीज़ें हैं जो ठीक होने वाली हैं। तो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट आवर प्रेजेंटेशन विच वी हैव कवर्ड। आई होप कि मैंने काफ़ी कुछ आपको कन्वे कर दिया होगा। थैंक यू सो मच, एंड अल्लाह हाफिज़।